Good morning. Yes, children. We'll continue with the chapter Management of Support Services, Institutions and Programs for Children, Youth and Elderly. Okay. In that, we have studied about children and the youth. Now we will start with the elderly persons. Okay. Why are elderly vulnerable? In India, senior citizens constitute people in the age group of 60 years and above. Okay, there has been rise in the population of older persons in India since life expectancy has increased. ठीक है, life expectancy बढ़ने की वजह से because good medical facilities are there, people became more aware about themselves, so they take more care of themselves. ठीक है, many factors are there जिससे कि लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है कि उनकी जो डेथ है वो काफी लेट एज में होती है. Majority of them, approximately 80%, okay, are in rural areas. Thus making service delivery a challenge. Okay, क्योंकि रूरल एरियाज में हम कोई भी सर्विस है वो इतना इजीली प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं जितना कि अर्बन एरियाज में कर सकते हैं. Feminization of the elderly population, then increase in the number of older old persons above the 80 years of age, that is, and a large percentage, 30% of the senior citizen is below the poverty line. और इसमें से भी जो आपके elderly person है उसमें से 30% लोग ऐसे हैं those who are leading life below the poverty line. ओके, तो ऐसे में उनकी जो परेशानी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है. Reasons why the elderly are vulnerable. More vulnerable to diseases. ठीक है, उनको जिनका जैसे जैसे हमारा एज बढ़ती है हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है इम्यूनिटी वगैरह डिक्रीज होने लगती है. ओके, more vulnerable to disease, decreased physiological reserves and the defense mechanism. Certain disabilities, low vision, blindness, that is cataract in the eyes, deafness, nerve impairment, mobility, low mobility हो जाती है due to the arthritis, osteoporosis. ठीक है, तो इन सब की वजह से भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है. This is the period when they find themselves alone because their children are likely to have moved away. ठीक है, या तो बच्चों की शादी हो जाती है या वो अपना जॉब वगैरह करने लगते हैं दूसरी जगह पर जाकर के, तो they feel loneliness also. Many individuals find themselves financially dependent on the younger generation and which may add to their feeling of stress. ठीक है, बहुत से लोग अगर प्लानिंग करके नहीं चलते हैं तो क्या होता है उनको अपना ओल्ड एज में या कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि ओल्ड एज में अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है फॉर फाइनेंसेस, तो ऐसे में भी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होती है. सर्टेन फीचर्स ऑफ द सिटी लाइफ, जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं और अगर जॉइंट फैमिली है भी तो हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, तो उनके पास बहुत कम टाइम होता है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को दे सके. However, we should not think that they are only problem and difficulties in old age. ठीक है, पर हम ये सब पढ़ के हमें ऐसा नहीं रखना चाहिए कि जो आपका ओल्ड एज है ये खाली प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज से ही भरा हुआ है ना. ठीक है, ऐसे भी बहुत से ओल्ड पीपल हैं जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और हैप्पी लाइफ लीड करते हैं. इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट वो अर्न करते हैं और बहुत हैप्पी लाइफ लीड करते हैं. इन मैनी फैमिलीज जो एल्डरली पीपल हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट मिलती है. ओके, और उनकी बहुत केयर करी जाती है, तो इवन देन इन सच circumstances also they are too happy. We should recognize the elderly as a human resource and optimally utilize their rich experience and the residual capacities for the benefit of the national development. ठीक है, तो हमारे जो elderly person है हमें
उनको अपना जो भी चीज हम डिसाइड कर रहे हैं उसमें उनसे अगर हम थोड़ा बहुत पूछ लें, है ना, अपना डिसीजन मेकिंग का पार्ट बना लें, तो दे फील दैट दे हैव बीन रिस्पेक्टेड फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। और कई बार उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें एक राइट डिसीजन लेने में भी हेल्प करते हैं। तो हमें उनकी जो कैपेसिटीज हैं उनको नेशनल डेवलपमेंट के लिए, है ना, और यूज करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट they lead healthy and fruitful lives. Keeping this in mind, the government should adopt national policy for older persons in 1999. Then, what are the different programs for the elderly persons? Concepts, why are elderly vulnerable, है ना? So concepts like privacy, space independence, materialism, focus on self, है ना, inability to adequately care, ये बहुत सारे reasons हैं. Need to provide economic and the health benefits, create a social milieu conducive and sensitive to the emotional needs. ठीक है, हमें उनकी इमोशनल नीड्स का भी ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए हमें सेंसिटिव होना चाहिए कि वो लोग हर्ट ना हो किसी की तरह. मोस्ट 60 years in the more are economically active भी होते हैं बहुत से लोग. रिच एक्सपीरियंस और जो उनकी कैपेसिटीज हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, उनको अगर हम यूज करते हैं तो और लोग की लाइफ भी फ्रूटफुल होती है और इन पीपल को भी लगता है कि यस दे आर गिवन द इम्पोर्टेंस और उससे वो कंटेंटेड या सेटिस्फाइड फील कर. Then programs for the elderly. Government, non-governmental organizations, Panchayati Raj institutions, local bodies are implementing different types of programs for the elderly in India, and some of the programs operating in the country for elderly are as follows. Programs catering to the basic needs of the older persons, particularly food, shelter, health care to the destitute elderly. ठीक है, जिन लोगों को कोई ढंग से मैनेज नहीं कर पाता है, देख नहीं पाता है, उन एल्डरली पीपल के लिए ये सारे बेसिक नीड्स जो है उनकी फूड, शेल्टर एंड हेल्थ, उसकी केयर कर. प्रोग्राम्स टू बिल्ड एंड स्ट्रेंथन इंटीग्रेशनल रिलेशनशिप particularly between the children, youth and the old persons. ठीक है, उन सबके बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना, जनरेशंस के डिफरेंट जनरेशंस के बीच में जो उनके बीच का जनरेशन गैप है वो खत्म हो जाए और वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके. प्रोग्राम्स फॉर एनकरेजिंग एक्टिव एंड द प्रोडक्टिव एजिंग. ठीक है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाना जिसमें वो अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, प्रोडक्टिव हो सके वो लोग, है ना. तो उनको भी अगर पैसा आ रहा है या वो किसी तरीके से उनको लगता है कि वो किसी के लिए कुछ काम कर पा रहे हैं, तो दे ऑल्सो फील हैप्पी फॉर दैट. Programs for providing institutional as well as non-institutional care services to older persons. ठीक है, आपके किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू या बिना किसी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी हम उनको ओल्डर पर्सन को अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, केयर कर सकते हैं. अगर हम देखते हैं हमारे घर के आसपास कोई ऐसा ओल्डर पर्सन है जो कि अपनी फैमिली से अलग रहता है, तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं, है ना. बार बार अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो हम पूछ सकते हैं कि आपको तो कुछ नहीं मकाना है, लाइक दैट. रिसर्च, एडवोकेसी एंड द अवेयरनेस बिल्डिंग प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ एजिंग. ठीक है, और इसके लिए अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए और काउंसलिंग होनी चाहिए और लोगों को अवेयर कराना चाहिए कि क्या डिफरेंट आपके प्रोग्राम्स हैं जो एजेड पीपल के लिए चल रहे हैं. ओल्ड एज होम इज टू प्रोवाइड फूड, केयर एंड द शेल्टर. ठीक है, और जहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि कोई उनको देखने वाला नहीं है, वहाँ पर इन पर्सन को ओल्ड एज होम्स में रहना पड़ता है और वहाँ पर जो ओल्ड एज है इनकी ड्यूटी की उनको फूड, केयर एंड शेल्टर तो प्रोवाइड करे ही करे. ठीक है, इसके साथ साथ जो आपके रिस्पाइट केयर होम्स होते हैं एंड द कंटिन्यूअस केयर होम्स होते हैं फॉर द ओल्डर पर्सन्स who live in the old age homes but are seriously ill requiring continuous nursing and the nursing care. ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए अगर कोई बहुत ज्यादा ओल्ड एज हाउस में रह रहे हैं और वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज वहाँ पर ज्यादा नहीं है ओल्ड एज होम्स में, तो उन सबको नर्सिंग केयर, प्रॉपर मेडिकल केयर भी मिलनी चाहिए. ऐसा ना हो कि तबीयत खराब हो एंड दे गॉट सम प्रॉब्लम. देन प्रोग्राम्स
for the elderly. Let us continue with this only. Multi-service caterers for older persons to provide daycare, educational and entertainment opportunities, healthcare companionship. ठीक है. मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स भी होती है जो कि आपके ओल्डर पर्सन्स को रूरल एरियाज में या बहुत ज्यादा आइसोलेटेड जगह जो रहते हैं, बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, वहां पर अपना मेडिकल केयर प्रोवाइड करती है. डे केयर सेंटर्स फॉर द अल्जाइमर डिजीज. ठीक है, जो लोग भूल जाते हैं, जिनको भूलने की बीमारी हो जाती है ना, ये कोई और डिजीज, ब्रेन से रिलेटेड डिमेंशिया, ठीक है, इनको भी स्पेशलाइज्ड डे केयर सेंटर्स में रखना पड़ता है. हेल्पलाइंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स ओल्डर पर्सन्स के लिए कि वो कैसे अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रह सकते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट दोनों पार्ट पर जरूरी होता है, with the on the part of the children as well as on the part of the older persons. Mental health care and the specialized care for the older persons to provide mental health care intervention programs to the elderly. Okay. Disability and hearing aids for the older persons. ठीक है, अगर उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है ना, वो डिसेबल्ड हैं या उनको हेयरिंग एड्स की जरूरत है, कम सुनाई देता है, तो वो सब चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए. फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स ओल्डर पर्सन्स के लिए, जिससे वो अपने को एक्टिव रख सकें, और कुछ एलिमेंट्स, कुछ बीमारियां तो उनकी केवल एक्टिव रहने से ही दूर हो जाती. अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स फॉर दी older persons and care given like self-care, preventive health care, disease management, preparation of old age and productive aging. ठीक है, इंटीग्रेशनल बॉन्डिंग, ये सब बहुत जरूरी है. ट्रेनिंग इन द ट्रेनिंग ऑफ द केयर गिवर्स टू द ओल्ड पर्सन. ठीक है, और जो लोग अपना ओल्डर पर्सन को लुक आफ्टर करते हैं, उनको भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि उनको उन्हें कैसे देखना है. Sensitizing programs for children, particularly in schools and colleges, कि उनको ये समझाया जाए कि they must be sensitive to their grandparents and the older people. ठीक है, ये चीजें अगर वो स्कूल से सीखेंगे तो उनमें वो फीलिंग अपने आप डेवलप हो जाएगी. National old age pensions meant for old persons who are considered destitute, that is not having any regular means of subsistence on their own. ठीक है, जिनके पास अपना कुछ भी खाने पीने के लिए पैसा या ऐसी चीजें नहीं होती हैं, उन सबको पेंशन मिलनी चाहिए. ना उनके पास कोई इनकम का सोर्स होता है या उनकी फैमिली भी उन्हें किसी तरीके से हेल्प नहीं कर रही. बेनिफिशियरी शुड बी अबव 65 एज, नीड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ एज. ठीक है, इसके लिए जो बेनिफिशियरी मोस्टली आपके 65 एंड अबव एज के होने चाहिए, और उनको अपना एज प्रूफ देना पड़ता है. ठीक है, और अपना डेस्टिट्यूट स्टेटस भी शो करना पड़ता है. The state governments can add to the amount from their own resources. और state government भी उनको इन सब चीजों में थोड़ा सा अपने पास से हेल्प करके उनकी कंडीशंस को बेटर बना सकते. Then career perspectives, people skills, interacting with the people in the different roles and different backgrounds. ठीक है, ये स्किल होनी चाहिए कि हम किसी के साथ बहुत अच्छे से बातें कर सकें, उसकी प्रॉब्लम्स तक पहुंच सकें, है ना. कोई हमसे अगर हम बात करने में अच्छे होंगे तभी कोई पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकता है. ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट वन में इंटरेक्ट विद, आपके जिनसे उन्हें इंटरेक्ट करना आना चाहिए. कम्युनिटी फील्स अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड द ओनरशिप. वेल प्लान्ड पीपल जॉइन फ्रॉम द स्टार्ट. प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड द इम्प्लीमेंटेशन पिलर्स. लिंकेजेस विद कम्युनिटी, इन्वोकिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. ठीक है, हमें अपना जो कम्युनिटी में अच्छे से अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए, और इस सब के लिए हमें पूरा प्लान करके स्टार्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए. प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, इन सब चीज़ों के 3 मेन पिलर्स हैं. ठीक है, हमें कम्युनिटी और जो इन्वोकिंग कम्युनिटी सबको पार्टिसिपेट कराना चाहिए इन सब चीज़ों. देन कम्स योर प्राइवेट सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज एंड द ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, इन ये सब चीजें इसके लिए सपोर्ट करते हैं. अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट सेक्टर, डिस्चार्ज सोशल सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ओके, CSR, ये लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में भी, जहाँ पर कि वो लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और अपनी ड्यूटीज को अच्छे से डिस्चार्ज करें. Then officials in the government,
इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर फंडिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अगर कोई अपना सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो वो गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करके अपने लिए फंड और कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स का काम करा सकता है कि वो चीजें जो उन्होंने स्टैब्लिश करी हैं वो लॉफुली भी ओके। पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सबके आपस में हार्मोनियस रिलेशंस होने चाहिए। ठीक है, जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, उन लोग के साथ, एज वेल एज जो पर्सनल जो वहां पर स्टाफ काम कर रहा है उन सब के साथ। कल्टीवेशन कॉर्डियल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, हैंडलिंग फाइनेंसेस, रिक्रूटिंग पर्सनल, रेंटिंग स्पेस, बाइंग इक्विपमेंट, मेंटेनिंग स्टोरेज रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये सारी चीजें भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का पार्ट हो जाती है। The necessity to have basic understanding even if specific people dealing with it are hired। ठीक है, सबकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सब चीजों के बारे में, चाहे जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनको हम पेमेंट करके काम पर रख रहे हैं। ठीक है, देन करियर पर्सपेक्टिव स्किल्स में स्टार्टिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। कंसीडर एस्पेक्ट लाइक लोकेशन क्या है, हमारा टारगेट ग्रुप कौन सा है ना। टारगेट बेनिफिशियरी मीन्स कि वो आपके चिल्ड्रन हैं, एडोलेसेंट हैं या ओल्ड एज पर्सन, और इसके लिए हमें सर्विसेज, फाइनेंस, स्टाफ रिक्रूटमेंट करना आना चाहिए। द नॉलेज हैंडलिंग फॉर्मेलिटीज ऑफ द, कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है जो हम अपना ओल्ड एज हाउस, ऑर्फनेज, ऐसी कोई चीज खोल करके स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करा जाता है। इम्प्रूविंग द एक्टिविटी बेस्ड ऑन पीरियोडिक इवैल्यूएशन एंड द फीडबैक। ठीक है, और अगर कोई चीज सही से नहीं चल पा रही ऐसा हमें लगता है तो इसके लिए हमें पीरियोडिकली उन चीजों को इवैल्यूएट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करने चाहिए। विजन, व्हाट टू अचीव, ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, हमें क्या हमारा एम है और उसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है या हेल्प कर रहा है। A person with a vision, deep commitment to the cause and a strong passion। ठीक है, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनका विजन रिगार्डिंग दिस वल्नरेबल ग्रुप अच्छा हो और वो डीपली कमिटेड हो उस काम के लिए, और उस काम के लिए उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पैशन होना चाहिए, तभी वो लोग अच्छे से काम कर पाए। ग्रेजुएशन इन होम साइंस, फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज और द सोशल वर्क और अदर सोशल साइंसेस के बाद लोगों को इसमें जॉब मिल सकता है। फर्दर स्टडीज और एंटर एम्प्लॉयमेंट मार्केट। ठीक है, आगे भी आगे इसी फील्ड में आगे स्टडीज कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। ओपन एंड द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स भी होते हैं लाइक इग्नू। ठीक है, जो आपके इससे रिलेटेड स्टडी कराते हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन द एनजीओ मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन द यूथ डेवलपमेंट वर्क एंड डिप्लोमा इन द गारंटोलॉजी। ठीक है, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि आपके ये आपके सपोर्ट सर्विस सिस्टम से रिलेटेड हैं। डिफरेंट फील्ड्स जहाँ आप एजुकेशन लेकर के काम कर सकते हैं। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, अपना ओन इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं, बी ए मैनेजर इन एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन और प्रोग्राम। ठीक है, कोई प्रोग्राम चल रहा है उसके, या कोई एस्टैब्लिश आपका पहले से ही कोई इंस्टीट्यूट है ऐसा, तो उसमें आप एज ए मैनेजर काम कर सकते हैं। बी ए फंक्शनरी एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पर आप वहां जाकर के हेल्प करके लोगों को काम कर सकते हैं। एंड बी ए रिसर्च कंसल्टेंट। ठीक है, और आप उनको कंसल्ट भी कर सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज all for the children, and chapter is over. Thank you everyone. Okay.